خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ملک بھر میں آرؤز کی تربیت کا عمل شروع۔ الیکشن کمیشن کے مطابق یہ تربیتی عمل کل بھی جاری رہے گا۔ ڈی آرؤز کی تربیت 19 دسمبر کو کی جائے گی۔ تفصیلات عثمان خان سے جانتے ہیں۔ جی عثمان۔ جی بالکل، عام انتخابات 2024 کے لیے الیکشن کمیشن نے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ الیکشن کمیشن میں ریٹرننگ افسران کی ٹریننگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں جو تربیتی عمل کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن حکام کی جانب سے ریٹرننگ افسران کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ ٹریننگ صبح 9:30 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی اور کل بھی یہ ٹریننگ کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اسی طرح منگل کے روز بھی جو ہے وہ افسران کو ٹریننگ دی جائے گی۔ مرکزی سیکٹریٹ اسلام آباد میں چکوال، اسلام آباد، اٹک اور جہلم کے آرؤز کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹر میں صوبہ بھر کے آرؤز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ جی عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ رضاکارانہ طور پر تجاوزات ختم کرنے کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت۔ منگل صبح سے باضابطہ آپریشن شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تجاوزات ختم نہ کرنے والوں کی گرفتاریوں کا بھی حکم دے دیا۔ مقدمات بھی درج ہوں گے۔ اسسٹنٹ کمشنرز اور ایس پیز کو متعلقہ علاقوں میں آپریشن کی تیاری کی ہدایت کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے خصوصی اجلاس میں انسداد تجاوزات آپریشن کی باضابطہ منظوری دی ہے۔ لاہور میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ رضاکارانہ طور پر تجاوزات ختم کرنے کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت ملی ہے۔ منگل صبح سے باضابطہ آپریشن شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تجاوزات ختم نہ کرنے والوں کی گرفتاریوں کا بھی حکم دے دیا ہے، جبکہ مقدمات بھی درج ہوں گے۔ اسسٹنٹ کمشنرز اور ایس پیز کو متعلقہ علاقوں میں آپریشن کی تیاری کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن نے ایک بار پھر کھڑی بسز کو سڑکوں پر لانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہ بسیں کراچی کے لوگوں کی سہولت کے لیے خریدی ہیں، لیکن افسوس ابھی تک یہ بندرگاہ پر ہی کھڑی ہیں۔ متعلقہ حکام سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں کہ بسوں کو بندرگاہ سے سڑکوں پر لایا جائے۔ کراچی کی عوام کو سستی اور بہترین سہولیات کا فائدہ ملنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن نے ایک بار پھر کراچی بندرگاہ پر کھڑی بسز کو سڑکوں پر لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کہا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہ بسیں کراچی کے لوگوں کی سہولت کے لیے خریدیں، لیکن افسوس ابھی تک یہ بندرگاہ پر ہی کھڑی ہیں۔ متعلقہ حکام سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں بسوں کو بندرگاہ سے سڑکوں پر لایا جائے۔ کراچی کی عوام کو سستی اور بہترین سہولیات کا فائدہ ملنا چاہیے۔ مصنوعی بارش کا پہلا تجربہ کامیاب ہوا۔ گزشتہ روز لاہور اور گرد و نواح میں برسنے والی ملک کی تاریخ کی پہلی مصنوعی بارش سے اسموگ کے بادل چھٹ گئے۔ پنجاب حکومت کی مؤثر حکمت عملی کے باعث لاہور فضائی آلودگی کی عالمی درجہ بندی میں پہلے نمبر سے 5ویں نمبر پر چلا گیا ہے۔ AQI کی مجموعی شرح 179 ریکارڈ کی گئی ہے۔ تفصیلات کومل اسلم سے جانتے ہیں۔ جی کومل۔ جی بالکل، شہر لاہور میں پنجاب حکومت کی کوششوں کے بعد جو ہے مصنوعی بارش برسائی گئی، جس کے بعد لاہور کا موسم جو ہے وہ کھل گیا ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی واضح کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس وقت لاہور کا AQI 179 ریکارڈ کیا گیا اور لاہور دنیا بھر میں 5ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ جہاں ہم دیکھ رہے تھے پھر کہ فضائی آلودگی بھی جو ہے وہ لاہور کے باسیوں کو تنگ کر رہی تھی، آج اس میں بھی کمی دیکھی جا رہی ہے اور دھند میں بھی واضح کمی آئی ہے۔ موجودہ جو ہے وہ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت ٹیمپریچر جو ہے وہ 19 ڈگری سینٹی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہواؤں کا سلسلہ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے جو ہے وہ وقفے سے چل رہی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سردی کی لہر میں بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ شہر لاہور میں بدلتے موسم کے مزاج جو ہیں وہ شہریوں کو بہت ہی حسین محسوس ہو رہے ہیں اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں سے متعلق کوئی بھی امکانات موجود نہیں ہیں۔ ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ موسم سرما کی بارشوں کا ابھی دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے، لہٰذا لاہور کے باسی جو ہیں وہ احتیاط کریں۔ اگر ہم ایئر کوالٹی انڈیکس مختلف علاقوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو فیز 8 DHA میں 340، جوہر ٹاؤن میں 218، US کونسولیٹ میں
96 और फिदा हुसैन इतराफ़ AQI जो है वो 187 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर के वासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है। छुट्टी का रोज़ भी है, लाहौरियों ने मुख्तलिफ प्लानिंग्स भी की हैं, मुख्तलिफ पार्कों का रुख भी करना है, इसलिए जो है लाहौर के वासियों को मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाने के हवाले से ताकीद की जा रही है। टेम्परेचर जो है ठीक वो है कोमल, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आप आगाह कर रही थीं। सिंध के ज़िला कंबर के DSQ हस्पताल की इंतज़ामिया की गफलत और नाअहली सामने आई है। DSQ हस्पताल कंबर में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 4 माह से ख़राब पड़ा है। DSQ हस्पताल में मरीज़ और उनके लवाहिकीन पीने का साफ़ पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। तफसीलात बता रहे हैं अखलाक चांदियो। बिल्कुल, सिंध के ज़िला कंबर शदाकोट की सबसे बड़ी DSQ अस्पताल में जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जहाँ पर मीठे पानी के लिए प्लांटेशन जो है यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन इस वक्त जो है DSQ अस्पताल इंतज़ामिया की नाअहली और अदम तवज्जो की वजह से गुज़श्ता 4 माह से मुकम्मल तौर पर ख़राब होने की वजह से दाखिल मरीज़ और आने वाले मरीज़ों को जो है मीठे पानी की सहूलत फराम ना होने की वजह से उनको जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जब इस वाले से मरीज़ों से बात की, उनका ये कहना है कि यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगाया गया था मीठे पानी की सहूलत से, जो सिर्फ 2 माह तक चला है, लेकिन गुज़श्ता 4 माह से यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ख़राब होने की वजह से मीठे पानी की कोई सहूलत मुयसर नहीं है। इतनी बड़ी अस्पताल है लेकिन मीठा पानी मौजूद नहीं है। इन्होंने जो है यहाँ पर ख़ास करके इनका मज़ीद ये भी कहना है कि जो मीठा पानी ना होने की वजह से यहाँ तो हम शहर से पैसों पर पानी भरवाने पर मजबूर हैं, यहाँ खुद जाकर जो है किसी मीठे पानी इलाके से यहाँ पर मीठा पानी यहाँ पर भर कर यहाँ अस्पताल में लेकर आते हैं, लेकिन जो अस्पताल इंतज़ाम है उनकी जानिब से कोई मीठे पानी की सहूलत नहीं दी जा रही है। इन्होंने निगरान हुकूमत और महकमा सेहत को ये अपील की है कि मीठे पानी की सहूलत फराम कर दी जाए, ताकि और इसके साथ साथ जो यहाँ पर प्लांट है उनको दोबारा रिपेयरिंग कराई जाए, ताकि इन जो आने वाले मरीज उनको जो है परेशानी का सामना ना हो। जी, अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। DG एंटी करप्शन पंजाब अफसरान के तबादलों में मसरूफ़ है। DG एंटी करप्शन सुहेल चट्ठा ने डायरेक्टर रावलपिंडी खालिद यामीन को ओहदे से हटा दिया। DG एंटी करप्शन ने डायरेक्टर RTD इमरान अहमद मलिक का भी तबादला कर दिया है। डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन फरहान मुस्तफा का भी तबादला कर दिया। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा ने पुरानी तारीख का नोटिफिकेशन कल जारी किया है। आपको बताते चलें, इलेक्शन कमीशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, इलेक्शन कमीशन के क्या अहकामात थे इस हवाले से? अवैस सुन पा रहे तो बताइएगा। जी, अवैस कियानी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये खबर ऐसी है कि जो एंटी करप्शन है वो बिल्कुल जो इलेक्शन कमीशन के एक वाज़ेह अहकामात एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि कोई भी जो अफसर जो है, इदारा है, ऑटोनमस बॉडी है, वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है वो नहीं कर सकता, और अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो उनको इलेक्शन कमीशन से जो है वो इजाज़त लेना लाजमी होगी। और इसी सिलसिले में अभी कुछ देर पहले हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी जो है वो बात हुई है, और उनका भी ये कहना है कि पोस्टिंग और ट्रांसफ़र जो है वो इलेक्शन कमीशन से ही पूछ के जो है वो की जा सकती है। लेकिन जो जफर चट्ठा साहब हैं उन्होंने जो है जो रावलपिंडी के जो इनके डायरेक्टर थे उनकी भी जो खालिद यामीन सर थी उनको भी हटा दिया है। उसके साथ उन्होंने 3 मुख्तलिफ ट्रांसफ़र किए हैं, जिसमें डायरेक्टर RDT इमरान अहमद मलिक है, उनका भी तबादला उन्होंने किया है, और डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन फरहान मुस्तफा है, उनको भी जो है वो चेंज किया है। तो उन्होंने जो ये नोटिफिकेशन किए हैं, कल नोटिफिकेशन हुए हैं पुरानी तारीखों में, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात हैं वो जो एंटी करप्शन पंजाब है वो खातिर में नहीं ला रहा, और यकीनी तौर पर एंटी करप्शन पंजाब पर पहले ही बहुत से इल्ज़ामात हैं। तो ये तमाम तर मामलात हैं, तौहीन इलेक्शन कमीशन के ज़ुमरे में ये चीज़ आ रही है, लेकिन DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा जो है ये तमाम तर नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के। याद है कि पूरे पाकिस्तान में चाहे वो ज़िलाई हुकूमतें हों, इंतज़ामिया हो, या ही कोई सूबाई या वफाकी इदारे हों, वो किसी तौर पर भी जो है पोस्टिंग और ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसकी रीसेंट मिसाल बहुत शुक्रिया अवैस खयानी आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनकी फैमिलीज़ को मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर सर्चिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। वजारत हवाबाजी ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को ख़त लिख दिया है। ख़त 12 अक्टूबर को सेक्शन ऑफिसर के दस्तखत से जारी हुआ है। ख़त DG ASF के नाम जारी किया गया है। ख़त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनकी फैमिलीज़ को सिक्योरिटी के लिए ना रोका जाए।
सेक्रेटरी एविएशन के अहकामात पर तमाम जजेस को मुस्तस्ना किया गया है। वजारत हवाबाजी ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को खत लिख दिया है। खत 12 अक्टूबर को सेक्शन ऑफिसर के दस्तखत से जारी हुआ है। खत DGASF के नाम जारी किया गया है। खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनकी फैमिलीज को सिक्योरिटी के लिए ना रोका जाए। सेक्रेटरी एविएशन के अहकामात पर तमाम जजेस को मुस्तस्ना किया गया है। वजारत हवाबाजी ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को खत लिख दिया है। खत 12 अक्टूबर को सेक्शन ऑफिसर के दस्तखत से जारी हुआ है। खत DGASF के नाम जारी किया गया है। खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनकी फैमिलीज को सिक्योरिटी के लिए ना रोका जाए। सेक्रेटरी एविएशन के अहकामात पर तमाम जजेस को मुस्तस्ना किया गया है। वजारत हवाबाजी ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को खत लिख दिया है। खत 12 अक्टूबर को सेक्शन ऑफिसर के दस्तखत से जारी हुआ है। खत DGASF के नाम जारी किया गया है। खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनकी फैमिलीज को सिक्योरिटी के लिए ना रोका जाए। सेक्रेटरी एविएशन के अहकामात पर तमाम जजेस को मुस्तस्ना किया गया है।